Hello children, welcome to the class, and this is class of class 7th, and this is your first chapter, The Boy Judge, from your book Carnival English Literature. So guys, today we are going to discuss about your first chapter, that is The Boy Judge, and this is the story about one little boy who is very sensible, intelligent, and know how to solve the problem. So let's start the story about the boy judge and come to know the boy is who is the boy. So let's start. First, warm up. We seek help of a fair and just person. Fair and just person, the person who is very just, intelligent, and know how to solve the problems, right? Sometimes we regularly visit such type of people, those who are very helpful. Who do you go to when you need help solving a problem, right? Who do you go to when you need help solving a problem, right? जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तब आप किसके पास जाते हो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. So guys, let's start the story. First scene. This is the first scene, okay? Over 1,000 years ago, in the reign of famous Khalifa Harun al-Rashid, there lived in Baghdad a merchant named Ali Kogia. One day Ali Kogia needed to travel on a long journey. राइट, ओवर 1,000 years ago, लगभग हजारों साल पहले की बात है. इन राइन ऑफ फेमस खलीफा हारून अल रशीद. और खलीफा, अरब कंट्रीज में खलीफा को, राजाओं को, एम्परर को खलीफा बोलते हैं. सो हारून अल रशीद नाम के एक खलीफा हुआ करते थे और उन्हीं के राज्य में बगदाद में एक मर्चेंट रहते थे जिनका नाम था अली कोगिया. वन डे अली कोगिया नीडेड टू ट्रेवल ए लॉन्ग जर्नी. और एक दिन अली कोगिया को कहीं बाहर जाना हुआ अपने काम के सिलसिले में. He packed up all his household goods and rented his home. The only thing left was to find a safe place to leave his private treasure, 1,000 pieces of gold. लेकिन क्या हुआ, उनको जाना था बाहर. सो ही पैक्ड ऑल हिज हाउस होल्ड थिंग्स. उन्होंने अपने घर के जितने भी सामान थे सबको पैक कर लिया और अपने हाउस को रेंट में दे दिया. एंड ही इज़ हैविंग द वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट ट्रेजर, राइट. उनके पास एक ट्रेजर थी, संपत्तियाँ थी जिसमें उनके पास 1,000 कॉइन्स थे गोल्ड के, राइट. सो उनको लगा इसको कहाँ रखना चाहिए. सो what happened next? Yes. Take a key to my warehouse and set your jar where you please. I promise you shall find it there when you return. So Ali Kogia's friend told him that this is my warehouse key. You just take it and place your 1,000 pieces of gold jar where you want. And when you come back, I will give you as it is. So this is my promise. उसके फ्रेंड ने उसको प्रॉमिस किया. Okay guys, next he put the gold into a large jar and observed the gold with olives. Covered the gold with olives, right. और उन्होंने एक बड़ा सा जार में 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड को रख दिया और ऑलिव्स के जो सीड्स होती हैं, टाइप ऑफ वन ऑयल सीड, जिससे तेल भी निकाला जाता है, और उस सीड को उसके ऊपर ढक दिया ताकि लगे कि एक ऑलिव्स के सीड से भरा हुआ जार है. दिस ही टुक टू ए फ्रेंड ऑफ हिज हुसैन हु वाज आल्सो ए मर्चेंट. Ali told him to take care of it till he come back. Hussein promised that he would. So अली ने क्या किया, अली कोगिया ने क्या किया, हुसैन को दिया उस एक ऑलिव से भरा हुआ जार, गोल्ड से भरा हुआ जार, ऊपर में जो ऑलिव्स रखा हुआ था, और बताया कि इसको आप तब तक सेफली रखो जब तक कि मैं रिटर्न ना आ जाऊँ. सो हुसैन ने उनको प्रॉमिस किया, ही प्रॉमिस दैट ही वुड, मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया कि जैसा आपने जार मुझे दिया है वो वैसे ही रहेगी. मूव टू नेक्स्ट गाइस. Ali Kogia journey took longer than he thought. Past tense of think is
thought. Hussein forgot all about the jar in his warehouse. One evening, Hussein's wife mentioned that she had not tasted olive for long while. अली को हो गया की जो जर्नी थी बहुत लंबी चली जा रही थी, बहुत दिनों हो गया था, लेकिन अभी तक वो रिटर्न नहीं आए थे. और उसी बीच में क्या हुआ, हुसैन की जो वाइफ है, उन्होंने हुसैन की वाइफ ने हुसैन को बताया कि उन्होंने बहुत दिनों से ऑलिव्स सीड को टेस्ट नहीं किया है. You remind me a jar of olives. Ali को हो गया left me 7 years ago. Surely he must be dead by now. I will fetch some from the warehouse. तभी हुसैन को याद आया, अली को हो गया नाम की जो उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने उनको एक जार दिया था ऑलिव्स सीड से भरा हुआ, और उनको लगा कि शायद अभी 7 साल हो गए. इट वॉज 7 ईयर, राइट. सो शायद वे इस दुनिया में नहीं है और ना ही कभी रिटर्न आएंगे. सो इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना उस जार से कुछ ऑलिव्स के सीड ले लिया जाए. हुसैन ओपन द जार. ऑलिव वर ड्राई एंड कवर्ड इन मोल्ड. मोल्ड मीन्स बहुत ही धूल से भरा हुआ कुछ भी चीज़ का कवर, एक ऊपर में जो परत बन जाता है, लेयर, राइट. सो ही shook the jar to see if all the olives had gone bad. To his surprise, gold pieces tumbled out. Tumble means एक आवाज़ के साथ नीचे गिरना. सो अली को गया ने कुछ देखा कि ऊपर के जो ऑलिव्स के हुसैन ने देखा कि ऊपर के जो ऑलिव्स के सीड है वो क्या हो गए हैं, बहुत ही गंदे हो गए हैं, राइट. और तभी उन्होंने देखा कि शायद अंदर के जो ऑलिव्स के सीड है वो अच्छे होंगे. और ऑलिव्स के वो सीड्स निकालते निकालते उन्होंने देखा कि नीचे गोल्ड्स के कोइन भरा हुआ है, और अचानक गोल्ड्स के कोइन नीचे गिरती है. द नेक्स्ट डे हुसैन buried द गोल्ड इन हिज गार्डन. देन ही filled up द जार विथ फ्रेश ऑलिव्स एंड क्लोज इट एज बिफोर. हुसैन ने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग में जितने भी गोल्ड थे, गोल्ड की पाइसेस थे, कोइंस थे, उन्होंने उनको अपने गार्डन में दफना दिया और या गाड़ दिया, और इस जार को दोबारा ऑलिव्स सीड से भर दिया जैसे पहले था. अबाउट ए मंथ लेटर अली को गया कम बैक टू बगदाद. ही वेंट टू सी हुसैन एंड आस्क्ड हिम फॉर द जार ऑफ ऑलिव्स. और फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद अली को गया रिटर्न आते हैं बगदाद, और हुसैन से मिलके पूछते हैं कि उन्होंने जो जार दिया था ऑलिव्स से भरा हुआ, वह मुझे रिटर्न चाहिए. सो My dear friend, I am very happy about your return. You will find your jar where you placed it. So हुसैन ने उनको रिप्लाई किया कि जो भी आपने मुझे जार दिया था मैंने उसको सेफली रखा है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप रिटर्न आए और आप अपने जार ले सकते हो जहां आपने रखा है. Ali went into Hussein warehouse and took the jar out. He was greatly surprised to find no gold in the jar. हुसैन ने बताया कि आपकी जो जार है वो वेयर हाउस में जैसे कि वैसे रखी हुई है और आप जाके ले सकते हैं. जैसे अली अंदर जाता है वो देखता है कि इसमें गोल्ड के कोइन नहीं है, बस ऑलिव्स के सीड भरा हुआ. ही वॉज सरप्राइज्ड. माई गुड फ्रेंड, दिस इज़ द जार दैट आई प्लेस्ड इट योर वेयर हाउस, बट आई कांट फाइंड द 1000 pieces ऑफ गोल्ड दैट वेर इन इट, राइट. और फिर क्या होता, अली कोगिया ने बताया हुसैन को कि इस जार में मैंने 1000 pieces ऑफ गोल्ड रखा हुआ था, कॉइन्स, लेकिन अब भी इसमें एक भी नहीं है. सो हुसैन ने क्या बताया, फ्रेंड व्हेन यू बोर्ड द जार डिड आई टच इट, नाउ यू डिमांडेड 1000 pieces ऑफ गोल्ड, हाउ कैन यू इंसल्ट मी सो. सो उन्होंने बताया हुसैन ने कि फ्रेंड जब आपने इस जार को रखा था, क्या मैंने देखा था आपने कहाँ रखा, या मैंने टच भी किया था, लेकिन आज अचानक आप 1000 pieces ऑफ गोल्ड मांग रहे, मुझे क्या पता. सो दिस इज़ लाइक इंसल्टिंग मी. इनफ. अब अली को गया एंग्री हो जाता, गुस्सा हो जाता. आई शैल गो टू द जज, आई विल नो हु इज़ ऑनेस्ट एंड लॉ विल पनिश द अदर. सो उन्होंने उनको धमकी दिया कि मैं जज के पास जाऊंगा और कोर्ट में आपके खिलाफ आपके अगेंस्ट एक्शन लूँगा और लॉ आपको पनिश करेगी. डिड नेक्स्ट, आई डोंट माइंड, लेट्स सी इफ़ द जज इज़ फुलिश इनफ टू बिलीव योर स्टोरी. मुझे नहीं पता कि आप जहाँ भी जाओ, लेकिन आपके इस तरह से फुलिश बुड़बक भरी
फालतू बातों में शायद जज भी बिलीव करे, एंड दिस इज टोटली फेक स्टोरी। डिड यू दे वेंट टू द जज। अब जज के सामने वे दोनों आते हैं, प्रेजेंट होते हैं और बातचीत होती है। डिड एनीवन सी यू पुट द गोल्ड इन द जार, जज इज आस्किंग द क्वेश्चन। सो अली कोगिया रिप्लाइड नो। डिड एनीवन टेल यू देयर वाज गोल्ड इन द जार, डिड यू ओपन इट, हुसैन वॉज रिप्लाइड नो। राइट, उन्होंने दोनों से पूछा कि आप पहले अली से पूछा कि आपने किसी को बताया था या किसी को दिखाया था कि इस जार में गोल्ड है। सो अली कोगिया ने रिप्लाई किया नो। एंड हुसैन को भी पूछा गया क्या आप को किसी ने बताया कि इसमें गोल्ड भरा हुआ है। सो उन्होंने बताया आंसर नो, मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट, Ali Kogia, there is nothing to show that there was ever any gold in your jar. You are an old man. You don't remember what did 7 years ago. Now Ali Kogia become older. Ali Kogia अभी धीरे धीरे older होते जा रहा, बूढ़ा होते जा रहा। और जज ने बताया शायद आपकी इस उम्र की वजह से आपको याद नहीं है कि आपने 7 साल पहले क्या किया है। Ali was angry at the judge's words. He wrote a letter to Khalifa and gave it one of the Khalifa's helper. The story was spread all through Baghdad. So when the Khalifa got the letter, he read it with interest. लेकिन अली कोगिया मानता नहीं है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने क्या किया, अपने खलीफा को, अपने राजा को, अपने एम्परर को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में अपनी सारी इंसिडेंट बताया किस तरह से उसकी 1000 pieces ऑफ गोल्ड चोरी हो जाती है, गायब हो जाती है। और जब वो रिटर्न आता है तब अपने फ्रेंड को मांगता है, लेकिन ऐसा कोई गोल्ड उसके फ्रेंड होने से रिफ्यूज़ कर देता है। लेकिन तब तक ये स्टोरी पूरी बगदाद में, पूरी कंट्री में स्प्रेड हो चुकी है और हर एक बच्चा जानने लगा है कि कैसा स्टोरी है। राइट, और जब ये लेटर एम्परर के पास, खलीफा के पास पहुंचता है, सो वे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस लेटर को पढ़ने में। मूव टू नेक्स्ट। दैट इवनिंग द खलीफा डिस्ग्यूज मीन्स अपने आप को बदल लेना, मीन्स भेस बदल के कहीं भी घूमना। राइट, डिसअपियर वन सेल्फ विथ अदर अपीयरेंस, एक अपना अपीयरेंस चेंज कर लेना। सो अली कोगिया ने क्या, नॉट अली कोगिया, खलीफा ने क्या किया, उस शाम को डिस्ग्यूज हो गया। डिस्ग्यूज मीन्स अपने भेस को बदल लिए, दूसरे रूप में आ गया और पूरी कंट्री में उस रात को वे घूमने लगी। एंड वेंट थ्रू द टाउन विथ हिज ग्रैंड वाजीर, और अपने वाजीर के साथ, अपने मिनिस्टर के साथ, मंत्री के साथ उस अपने सिटी में, अपने राज्य में घूमने लगे। ही कम टू गेट वे थ्रू विच ही सो 10 or 12 चिल्ड्रन प्लेइंग बाय द मूनलाइट। उन्होंने देखा 10 से 12 बच्चे रात के अंधेरे में, चांदनी में 12 बच्चे खेल रहे। लेट्स प्ले कोर्ट रूम विथ अली कोगिया एंड हुसैन। बच्चे, ये स्टोरी इतना फेमस हो गया था कि बच्चे भी जानने लगे थे और वे भी इस स्टोरी को अपने गेम में इंक्लूड कर लिए थे, शामिल कर लिए थे। वे बच्चे क्या खेल रहे थे, लेट्स प्ले द अली कोगिया एंड हुसैन इन कोर्ट रूम। वे कोर्ट रूम खेल रहे थे और उसमें एक हुसैन बना हुआ था और एक अली कोगिया। एज द गेम वेंट ऑन द खलीफा लिसन मोर एंड मोर केयरफुली, द बॉय प्लेइंग जज वॉज आस्किंग गुड क्वेश्चंस। अब जो बच्चा जज का रोल कर रहा था वे अपने गेम में, सो बच्चा क्या था, चाइल्ड, ही वॉज आस्किंग द गुड क्वेश्चंस। वो बच्चा बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा था। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द बॉय was asking the good questions which can solve the problem, especially the case। ये जो केस था राजा को लगा, खलीफा को लगा, ये बच्चा बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस पूछ रहा, जज से भी अच्छा क्वेश्चंस पूछ रहा। द बॉय इज आस्किंग द गुड क्वेश्चंस, सो दिस बॉय मे बी सॉल्व द प्रॉब्लम और द केस। मूव टू नेक्स्ट। ओके, व्हाट हैपन नेक्स्ट? Speak to this boy, tell him to come to palace tomorrow morning. I also want to see the judge Ali Kogia Hussain and 2 olives merchant Ali Kogia to bring the jar of olives. So the emperor was asked to his wazir, अपने मंत्री को उसने बताया कि जो बच्चा है, द बॉय, इसको आप कल मेरे पैलेस में बुलाओ, महल में बुलाओ, और साथ ही साथ जज अली कोगी और हुसैन को भी बुलाना, और जो ओलिव्स के मार्चेंट हैं उनको भी बुलाना। साथ ही उनको बताना कि जो जिस जार में 1000 pieces ऑफ गोल्ड्स या ओलिव्स रखा हुआ था, उस जार को भी वे कैरी करके
ले आए पैलेस में। द नेक्स्ट डे इन द कोर्ट, ये जो सीन है दिस इज द नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम की सीन है, कोर्ट रूम में क्या होता है स्पेशली इन द पैलेस। लास्ट नाइट आई हर्ड यू द जज दिस टू मैन इन अ प्ले, टुडे यू आर गोइंग टू डू इट फॉर रियल, राइट। द एम्परर सेड टू द बॉय, उसने बच्चे को बताया, बॉय को बताया कि लास्ट नाइट मैंने देखा कि आप लोग कोर्ट रूम खेल रहे थे, बट यू आर आस्किंग द गुड क्वेश्चंस, बट कल क्या था, आप लोग खेल रहे थे लेकिन आज आपको रियल में करना है। एंड यू जज लिसन टू दिस चाइल्ड, लर्न हाउ टू टेल ट्रूथ फ्रॉम अनट्रूथ, राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड गुड पीपल फ्रॉम थाइप्स। और राजा ने, खलीफा ने नसीहत दिया, एडवाइस दिया जज को कि सीखो इस बच्चे से, लर्न हाउ टू टेल द ट्रूथ, कैसे एक ट्रूथ अनट्रूथ से ट्रूथ कैसे बुलवाया जाता है, सच्चाई कैसे निकलवाया जाता है लोगों से, राइट फ्रॉम रॉन्ग, राइट रॉन्ग से राइट को कैसे लाया जाता है, और गुड पीपल फ्रॉम थाइप्स, और चोरों से भी कैसे इस तरह से सवाल किया जाता है। सो द किंग वॉज सेइंग टू द पीपल। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ब्रिंग मी द jar, the boy was saying bring me the jar, boy was saying that I need that jar to solve the problem, although he was afraid of the people around him, the boy spoke clearly। हालांकि जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था क्योंकि उसके सामने बहुत ही बड़े बड़े लोग थे। एंड ही वॉज वेरी लिटिल, हुसैन इज़ द जार ऑल गेव यू, ही वॉज आस्किंग टू द हुसैन, हुसैन क्या यही जार है जो आपको आपके फ्रेंड अली कोगियन ने दिया है? ही वॉज सेइंग यस। नाउ ही आस्क्स टू द नेक्स्ट हिज फ्रेंड अली, अली इज दिस जार यू गेव योर फ्रेंड, अली क्या वो एक वही जार है जो आपके फ्रेंड ने आपको दिया है? ही वॉज सेइंग यस। द बॉय टुक आउट सम ऑलिव्स and gave some to Khalifa, he gave some to Ali and Hussein, then he ate one himself। वो लड़का ने क्या किया, कुछ ऑलिव्स के सीड्स लिए उस जार से और कुछ खलीफा को दिया, कुछ अली को दिया, कुछ हुसैन को भी दिया और कुछ अपने लिए रखा और सबको बताया खाने के लिए इसका टेस्ट कैसा है। देन ही एट वन हिमसेल्फ, और फिर एट पास्ट टेंस ऑफ ईट इज एट, और एक सीड अपने लिए रखा। दिस आर गुड ऑलिव्स, डिड यू ईट एनी ऑफ देम बिफोर टुडे? दिस आर द गुड्स ऑलिव्स, उसने सबसे पूछा कि ये ऑलिव्स की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, और क्या आप सबों ने इसके पहले इस तरह के ऑलिव्स खाया है? नॉट वन, नहीं, किसी ने नहीं खाया, पहली बार खाया। मार्चेंट यू मस्ट ट्राई दिस ऑलिव्स, दे आर वेरी गुड थो 7 years old। मार्चेंट को भी जो दूसरे मार्चेंट थे उन्होंने उस बच्चे ने उनको दिया कि बहुत ही अच्छे ऑलिव्स है और 7 साल पहले की ऑलिव से आप इसको टेस्ट कर सकते हो। 7 years old, दे कांट बी, दिस आर दिस ईयर्स ऑलिव्स, नो ऑलिव्स इज एनी गुड आफ्टर 3 years। नाउ दिस इज़ द टाइम। अब यहाँ पर टाइम आती है कि बच्चे ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया कि उन्हीं के क्वेश्चन से इस बच्चे ने अपना केस सॉल्व कर दिया। क्या बताया, मार्चेंट को जैसे ही बॉय ने क्या किया, कुछ ऑलिव्स के सीड्स दिया, सो ये बताने लगे यस दिस आर टेस्ट वेरी गुड, एंड ये ऐसे नहीं लगते कि ये बहुत साल पुराने हैं, लगभग 7 साल पुराने हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत 1 साल पुराने हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर 3 साल पुराने ऑलिव से तो उसको खाया नहीं जा सकता, वो ख़राब हो जाती है। इवन आफ्टर 2 years दे लॉस देयर कलर, लगभग 2 साल बाद, जो दूसरे मार्चेंट है उन्होंने बताया लगभग 2 साल बाद ऑलिव्स अपने कलर, ऑलिव्स की जो कलर है वो ख़राब हो जाती है। यस, हुसैन से दैट दे हैव बीन इन द जार फॉर 7 है, लेकिन हुसैन का कहना है लगभग 7 साल से पहले रखा हुआ, 7 साल से भी पुराना है।
हुसैन फेस ग्रू रेड विद सेम, लेकिन हुसैन अभी पकड़ा जाता है और शर्म से उसका चेहरा बहुत ही लाल हो जाता है, खराब हो जाता है। आई टुक द गोल्ड इट्स बरीड इन माई गार्डन, ही टोल्ड दैट, मैंने उस जो गोल्ड है उसको रखा है और मैंने अपने गार्डन में उसको गाड़ा है। यू नो हाउ द लॉ पनिश थाइप्स द किंग, द खलीफा रिप्लाइड, आपको पता है कि किस तरह से थाइप्स को यहाँ पर पनिश किया जाता है। ओह खलीफा, डोंट कट ऑफ हिज हैंड, ही वॉज वंस ए गुड फ्रेंड टू मी, लेट हिम गो विथ ए बीटिंग। बट उसका जो फ्रेंड था अली को गया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया खलीफा से कि इसका हाथ ना काटा जाए, क्योंकि वहाँ की जो लॉ है बहुत ही स्ट्रिक्ट है। सो उसने रिक्वेस्ट किया खलीफा से कि इसका हाथ ना काटा जाए, बस एक सिंपल बीटिंग से इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि पहले मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करता था। बीटिंग वुड बी इनफ, क्या बीटिंग इनफ है? राइट, इस तरह के चोर के लिए। द खलीफा agreed with the decision, so Hussein kept his hand but lost his good name. Ali lost his friend but got back his gold. लेकिन यहाँ पर क्या होता, हुसैन और अली के साथ कुछ अलग होता। खलीफा एग्री हो जाता है उस डिसीजन से कि इसको एक सिंपल बीटिंग से, मतलब सिंपल पनिशमेंट से इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हुसैन अपना हाथ तो बचा लेता है, लेकिन उसका जो अच्छा नाम था चारों ओर, उसकी जो अच्छी सबके साथ जो उसकी अच्छी बनती थी, उसका जो एक अच्छा नाम था अपने स्टेट में, एक अच्छे मार्चेंट का जो नाम था वो ख़राब हो जाता, उसका जो गुडविल है वो ख़त्म हो जाता। और अली के साथ अली ने एक आज अच्छा दोस्त खो दिया था, लेकिन अपना गोल्ड वापस पा लिया था, रिटर्न पा लिया था। आफ्टर ऑल 20 जार्स ऑफ गोल्ड कांट बाय ए गुड जज। और इतने सालों बाद 20 जार्स ऑफ, अगर 20 जार्स गोल्ड भी मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह के जज दोबारा मिलना मुश्किल है। द खलीफा पेड फॉर बॉय एजुकेशन इन लॉ, और खलीफा ने उस बच्चे को, उस बॉय को एजुकेशंस दिया, मतलब एक अच्छा एजुकेशन दिया, और उसको कॉलेज में लॉ में उसको एडमिशन दिया, ताकि वो बच्चा एक आगे जाके एक अच्छा जज बन सके। गाइज, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द बॉय एंड द पीपल। द बॉय जज, एक लड़का कैसे एक केस को इजीली सॉल्व कर देता है बाय आस्किंग द गुड क्वेश्चन, एंड विच वाज नॉट एबल टू सॉल्व बाय द जज, स्पेशली द वाइसर पीपल and the king also. Right, everyone praised the boy, and he got the education by the side of the Khalifa in law. There is some difficult word, glossary part, you can just revise. Rhyme means time in power, एक particular time में Khalifa warehouse mention, just read out and solve your question answer. So see you guys in next class. Till then, be happy, stay at home.